My dear students, Henry Foyle has given his ideas. Edward Taylor had his own viewpoint. In Europe, now there is another sociologist and management scholar. He's more sociologist than management scholar. He's philosopher. But I think we see today, even today, that this sociologist had an effect at least on public organization. Remember, public enterprises and private or the business enterprises. Now, Adam Smith had his viewpoint, being an economist, that let the market be free. Yes, division of labor, fine. But let the market come up with its own dynamics. If somebody has invested money in business, he should have right to earn as much profit as he can. But when we look at the German viewpoint, we see Max Weber, and this German management scholar, he really did not like the idea of Adam Smith, economical ideas. He believed, Max Weber, being a sociologist, remember his concern was more social. Now, of course, आप कहेंगे कि जो बिजनेस इन्वेस्टर है, कैपिटलिस्ट जो है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना? नहीं है तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है और बाज़ औक़ात वो उन इंसानों को जो उसके बिजनेस के प्रॉफिट का सबब बन रहे हैं, उनको भूल जाता है. उसका प्रॉफिट का सेल्फ इंटरेस्ट इस कदर बढ़ जाता है कि बाज़ औक़ात वो उनके वर्कर्स की और उनकी लाइफ की और वर्कर्स के फैमिली की भी परवाह नहीं करता. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेगी. ही इज मोर कंसर्न अबाउट हिज वेल्थ and multiplication of wealth. But anyhow, Max Weber rejecting the ideas of Adam Smith. Why? Because Max Weber says it gives more interest to the self-interest. Selfish-like attitude. अच्छा, वैसे तो rationalization के perspective में selfish attitude is not bad. But remember, morality says there should be सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड. दोनों एटीट्यूड है ना. एक सेल्फिश एटीट्यूड है, सब कुछ मेरे पास ही आ जाए. एक सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड है कि नहीं, मेरे पास भी आए लेकिन इस दुनिया में दूसरे लोग भी जिंदा हैं. दैट्स अ सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, अब किसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? नॉर्थ अमेरिकन व्यू पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंटरप्राइजेस, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये उनका व्यू पॉइंट था. यूरोप नहीं, पब्लिक एंटरप्राइजेस. रेलवे गवर्नमेंट की हो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के हों. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सिटीजन्स की सिक्योरिटी, सिटीजन की एजुकेशन, सिटीजन्स की वेलफेयर, सिटीजन के लाइफ, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार हो. ये व्यू पॉइंट है. आज भी आपको नजर आएगा कि व्हेन यू लुक इवन टुवर्ड्स द वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज, यू विल फाइंड डिफरेंस ऑफ व्यूज. मैक्स वेबर हैड अ व्यू that if you like to bring efficiency in organization where people are working, may it be public, may it be private. He did not differentiate between public and private. It's an organization. It's a social organization. Max Weber gave a point of view that to make it more efficient, let there be a system of discipline, a system of order, a system of hierarchy, a system of command. And at each and every level of hierarchy, everybody should know what's his power, what's his authority. तो मैक्स वेबर ने
सोसाइटी में मैनेजर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, बल्कि अब मुझे कहने दीजिए मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, उन सब के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और उस सिस्टम का नाम क्या है? ब्यूरोक्रेसी। आज ये लफ्ज ब्यूरोक्रेसी का कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इटसेल्फ वाज एन एफिशिएंट सिस्टम. He gave 6 principles for this bureaucratic system. Bureaucratic organizational form should be developed having 6 features. Feature number 1, division of labor. No problem. Specialization should be brought in. Number 2, there should be hierarchy. आज भी पाकिस्तान में आपको ग्रेड्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 22, है ना? हायरार्की 1 से लेकर 22. अच्छा, आप इसको कम भी कर दीजिए, आप 6 भी बना सकते हैं. जापानियों ने इसको 3 ही बना दिए, डिपेंड करता है. बट हायरार्की टू गिव ए स्ट्रक्चर. बात हम 20th सेंचुरी की कर रहे हैं ना. Number 3, there should be rules and regulations. Number 4, and rules and regulation for everybody. इसलिए कि उसका जो नंबर 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, impersonality. पर्सनैलिटी फेस देखकर रूल को इंप्लीमेंट ना किया जाए, इसलिए कि जब आप फेस को देखकर रूल इंप्लीमेंट करेंगे तो करप्शन जनरेट होगी. क्या ख्याल है? गौर कीजिए इसके ऊपर. लेकिन मैक्स वेबर ये कह रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हायरार्की कंट्रोल हो और मैनेजर्स इम्पर्सनल होकर डिसीजन करें अक्रॉस द बोर्ड. नंबर 4 क्या है? टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए मैनेजर की. उसको जो टेक्नोलॉजी है उस पर कमांड होनी चाहिए, उसको इंटेलिजेंस पे कमांड होनी चाहिए, उसको जो एरिया अंडर कंट्रोल है उसका उसे पता होना चाहिए. और लास्ट पॉइंट क्या है? ए स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वर्क. अच्छा, कुछ फाइल वर्क ज्यादा ही हो गया जिसको हम रेड टेपिज्म कहने लगे, इसलिए फाइल मूव ही नहीं करती. आपने 22 ग्रेड बना दिए ना, और फाइल चलती है फर्ज कीजिए ग्रेड नंबर 4 से 5 से, ऑफिस असिस्टेंट से, वो तो सेक्शन ऑफिसर से होते होते सेक्रेटरी तक पहुंचते पहुंचते उसको फिर बाजुकात लोग कहते हैं पहिए लगाने पड़ते हैं. बट मैक्स वेबर वाज सेइंग यू मस्ट हैव ए रिटन फॉर्मल स्टैंडर्ड communication system so that order should be established in the public enterprise or the business enterprise. Thank you very much.